Hello, everyone. Welcome to another episode of In Conversation by Advisor Coach. Today in conversation, I have Mr. Arjun Khanna, Fund Manager Equity with Kotak Mutual Fund. Arjun, in fact, happens to also be my ex-colleague from one of the organizations we worked together. So it's absolutely an honor today to have this conversation with Arjun. Welcome, Arjun, to In Conversation Advisor Coach. Thank you, Suren. It's a pleasure to be here. Yes, we are ex-colleagues, so it's obviously a great honor to speaking to you on this platform. It's absolutely delightful for me today, trust me. So Arjun, before we get into our conversation, if you could just tell our viewers more about yourself, your investment management journey, and your experience. Sure. If I look at my experience, I have close to 2 decades of experience. मेरी शुरुआत सिटी बैंक से शुरू हुई थी. तो सिटी बैंक in the calendar year 2004-5. So I worked in their city corporate and investment banking. उसके बाद मैंने MBA की थी and I did my or I worked to earn the right to earn the CFA charter holder. I also am an FRM holder. तो उसके बाद, as luck have it, I got an opportunity to work at Principal Mutual Funds. ज्यादातर लोगों का जर्नी अगर हम समझे, it's been usually through the sell side और फिर बाद में वो buy side में उतर आते हैं. I think given my interest and I did have a PPO with the city investment banking side, I was yet keen to join the buy side and was very fortunate to join Principal Mutual Funds. So wahan I looked at a few sectors. I started off with, say, media and FMCG. I did look at autos and then select stocks across the space, including financials, mid caps, building products, etc. Post about 8 years, which is roughly 10 years back in 2016, beginning, I joined Kotak Mutual Funds. I was fortunate that another ex-colleague of ours recommended me for this position. And I have been here for the past 10 odd years. So out here, I do look at a number of sectors. I look at the agri space. I look at fertilizers. I look at agrochemicals, chemicals, auto, ancillaries, select mid caps across sectors. Since calendar year 2019, I have been managing the overseas funds. Now, the way we look at the overseas funds, Surenji, is in terms of Kotak believes that we are India specialists in the AMC. All our research efforts are dedicated towards the Indian equity side. Yes, we have options to invest outside India. For this, we have tied up with specialists for each of these products. So our overseas funds, which I overlook, are feeder funds. Majority of my time is spent on researching Indian companies. So for our Global Innovation Fund, we have tied up with Wellington. For Global Emerging Markets, we have Canadian Investments. For International REIT, we have Sumitomo. For our NASDAQ product, we have tied up with iShares. So we have experts for the global piece. For the Indian piece, active management side, we have a very strong team, which we are extremely proud of. Absolutely. Absolutely. So a decade now with Kotak. Absolutely, Suren. Excellent, excellent. So Arjun, a lot of action is happening on the rural side, correct? Right. And so Kotak Mutual Fund has launched their new fund offer of Kotak Rural Opportunities Fund on the 6th of November and closing on the 20th November. Right. So could you tell our viewers more in detail as to what this Rural Opportunities Fund is all about? And what's this theme of the rural opportunities? Sure, सुरेन, तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहला प्रश्न, जब मैं रूरल की बात करता हूं और when we talk about rural, what is the first thing आपके मन में आता है? And maybe the viewers also, in your mind, what is the first word that comes to your mind? मेरे दिमाग में तो एग्रीकल्चर आता है. Absolutely. और अगर हम समझे, it's absolutely right, क्योंकि 50 साल पहले अगर हम आंकड़े देखें, the data suggests
that approximately 86% of people in rural India who were employed were in agriculture. मतलब 90% आसपास लोग रूरल में एग्रीकल्चर में काम करते थे 50 साल पहले 1970s में. अगर हम अभी के आंकड़े देखें, ये नंबर काफी हद तक गिर चुका है. अगर हम देखें अभी लगभग 7% है. लुकिंग एट इट ऑन अनदर वे, सुरेंद्र जी, कहाँ 10-14% लोग नॉन एग्रीकल्चर में काम करते थे रूरल इंडिया में. अभी 40%, 40% ऑफ पीपल इन रूरल इंडिया आर इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज. ये डायरेक्शन जो चल रहा है, हमारा मानना है इसी तरफ चलता जाएगा. अगर हम समझे रूरल इंडिया में, तो अगर वो एग्रीकल्चर में नहीं है, वो काम कहाँ कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ट्रेड, टूरिज्म, होटल, रेस्टोरेंट वगैरह वगैरह. तो अगर हम पूरा ये जो रूरल इंडिया समझे, रूरल इंडिया इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, इट इज लॉट मोर देन एग्रीकल्चर. चलो दूसरी पहलू समझते हैं. चलो आपसे और अपने दर्शकों से पूछता हूं, रूरल इंडिया का, चलो इंडिया की बात करते हैं. इंडिया का पॉपुलेशन क्या होगा? व्हाट्स इंडियाज पॉपुलेशन? 145 crores. परफेक्ट, अराउंड 145 करोड़. और सर कितना होगा अर्बन, कितना होगा रूरल? मेरे ख्याल से तकरीबन तकरीबन 80% विल बी रूरल. Sir, actually we'll be surprised. Rural is 2/3, urban is 1/3. So if you are saying 2/3 rural India, हम 90 करोड़, 90 plus, it's around 90 to 93 crore people in rural India, and urban India roughly 50 to 53 crore people. So the cohort of the people we are talking about is extremely large. We are, and just to give global context to this, अगर हम दुनिया में देखें, yes we discussed इंडिया सबसे बड़ा 145 करोड़. अगर हम चाइना की बात करें 140 करोड़. अभी दुनिया में कौन सा देश होगा which is the third largest country in terms of population? US, I think about 360 million. परफेक्ट. तो लगभग 36 करोड़ लोग यूएस में हैं. तो अगर हम रूरल की कोहॉर्ट देखें, it is substantially bigger than what we have seen even in terms of third largest population, which is US. हाँ, पर कैपिटा जीडीपी छोटा है रूरल का यूएस के मुकाबले. पर अगर हम देखें, that actually means that we have a very long road for development in the times to come, where we can look at a lot of opportunities for this development period. Absolutely. तो हमारा मानना है, तो ये प्रोडक्ट क्यों लाए हैं? We do see that this जो opportunity set है हमारे सामने, we should be able to play this through multiple sectors, through long time periods. और ये एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड है, और हमारा मानना है ये आगे जाके भी कायम रहेगा अक्रॉस साइकिल्स. एब्सोल्युटली. अर्जुन, एक बात बताइए कि गवर्नमेंट ने और प्राइवेट सेक्टर ने काफी इनिशिएटिव्स लिए हैं, फॉर द रूरल सेक्टर particularly, and for improving their socio-economic situation. आप थोड़े हाईलाइट कर पाएंगे कि क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं? तो अगर हम देखें, it's actually very interesting, सुरेंद्र जी. तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग हैज एक्चुअली जस्ट बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रेंड. हम 2008 से देखें 2024 तक या 26 तक बजट एस्टिमेट्स तो निकले हैं, द ट्रेंड एकदम ऊपर है. हाँ, एक साल हमने देखा है आंकड़े में कि 2020-21 में कि स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ा था, पर उसको निकाल के, क्योंकि वहां कोविड था, ज्यादा जरूरत थी, द नीड वाज हायर, पर ज्यादातर वी हैव सीन अ स्ट्रेट ग्रोथ इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगर हम स्कीम्स की बात करें, एक है पीएम ग्राम सड़क योजना, रोड्स. तो गवर्नमेंट का काम क्या है? व्हाट आर द की एलिमेंट्स वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर्म? एक है रोड्स, एक है इलेक्ट्रिसिटी. रूरल इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउसिंग पे काफी हद तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो रही है. इफ यू लुक एट वाटर अवेलेबिलिटी, इफ वन लुक्स एट की नीड्स फॉर द फार्मर, जैसे कि क्रॉप इंश्योरेंस, हमने ऐसे भी स्कीम्स देखे हैं जैसे पीएम किसान. वहां दे एक्चुअली पे आउट अ फिक्स्ड अमाउंट
to every farmer every year, released in multiple installments. तो essentially रूरल इंडिया की जिक्र कर रहे हैं तो ज्यादातर लोग रूरल इंडिया में रहते हैं. चलो मैं आपसे एक मजाक करता हूँ, शायद एक जोक है. जनरली पॉलिटिशियंस का पहला काम क्या होता है? रूरल इंडिया की तरफ देख के उनको सपोर्ट देना. तो सुरेश जी, मेरा एक मानना है कि जनरली पॉलिटिशियंस का पहला काम इलेक्शन जीतना है. करेक्ट, तो एब्सोल्युटली. उसके तो लिए वादे होते हैं. तो ये एक मजाक है, पर उनका दूसरा काम और तीसरा काम क्या होता है? आई थिंक वादों पे काम करना. जी, और कुछ? आई थिंक to increase the income level of people, to increase the economic socio-economic level of the country. तो हाँ, आंसर तो सही है, पर क्योंकि हम मजाक कर रहे हैं, मेरा मानना है पॉलिटिशियंस का पहला काम है इलेक्शन जीतना. दूसरा और तीसरा काम है कि पहले काम को कभी नहीं भूलना. तो अगर जनरली अगर हम इंडिया को देखें, रूरल इंडिया इज द लार्जर साइज ऑफ द हम्म. ओवरऑल कोहॉर्ट ऑफ पीपल. ज्यादा लोग रूरल इंडिया में रहते हैं, और अगर किसी को इलेक्शन जीतना है, जो रूरल इंडिया में रहते हैं उनको जीतना इज वेरी इंपॉर्टेंट. हम्म. उनके बिना वो सत्ता में नहीं आ पाएंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स लाए, इट इज फॉर अक्रॉस रूरल इंडिया, और वो सपोर्ट करते रहे आगे जाके. क्योंकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, इट इज नेसेसरी दैट गवर्नमेंट स्कीम्स कम इन टू प्ले. क्योंकि जो बेसिक्स है, जैसे बिजली, सड़क, पानी, हम्म. हाउसिंग, वो खाली हाउसिंग. गवर्नमेंट प्रोवाइड कर पाएगा. इट विल बी हम्म. वेरी डिफिकल्ट टू डू इट ऑन अ प्राइवेट सेक्टर बेसिस. हम्म. इनिशियली डेवलप्ड मार्केट्स में काफी ये सब यूटिलिटीज प्राइवेट सेक्टर भी प्रोवाइड करते हैं, पर जो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है एट द बिगनिंग पॉइंट इन टाइम, हमारा मानना है इट इज इम्पोर्टेंट. जो डेवलपमेंट स्टेज पे है इन टर्म्स ऑफ रूरल इंडिया, अभी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा. और क्योंकि वी आर अ डेमोक्रेसी, it is very हम्म. important that within a democracy everyone is taken forward together. We do see the spending on rural India to continue to be strong in the times to come. हम्म. और ज्यादातर अगर हम आंकड़े देखें, क्योंकि मैं बजट एस्टिमेट्स की बात कर रहा था, इट वाज लार्जली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पर अगर हम स्टेट गवर्नमेंट्स की भी बात करें, वी आर सीइंग स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रूरल इंडिया. काफी स्कीम्स आ रहे हैं, एंड वी डू बिलीव दैट स्पेंडिंग ऑन रूरल इंडिया on by the governments will continue to grow over longest time periods. श्योर, श्योर. एनी प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव अर्जुन जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में आते हैं? तो अगर हम देखें, काफी स्टार्टअप्स आ चुके हैं. हम्म. फाइनेंस सेक्टर में तो हमें सब पता है, राइट? हम्म. अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ माइक्रो फाइनेंस हम्म. इंस्टीट्यूशंस, एक स्टार्टअप की तरह उभर के आए थे. नाउ इट्स एक्चुअली बिकम अ प्रॉपर इंडस्ट्री. दे हैव रिप्लेस्ड मनी लेंडर्स टू अ लार्ज एक्सटेंट. तो अगर हम समझे, हमारा मानना है वी शुड सी सब्सटैंशियल अपलिफ्ट इन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन रूरल इंडिया. अगर हम एफएमसीजी और रिटेल की बात करें, दे आर कम अप विथ वेरी इंटरेस्टिंग इनोवेशंस टू बूस्ट कंजम्पशन ऑन द रूरल साइड. प्राइवेट सेक्टर जैसे कि पेस्टिसाइड एप्लीकेशन हम देख रहे हैं, ड्रोन्स सेगमेंट. तो इन टर्म्स ऑफ प्राइवेट साइड, हमारा मानना है, क्योंकि प्राइवेट साइड इज ड्रिवन बाय प्रॉफिट, और प्रॉफिट अगर हम देखें, दे विल कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस. कोर इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगा. प्राइवेट कंपनीज विल लुक एट इनोवेशंस टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल इन रूरल इंडिया. यस, दे विल बी ऑन द प्रो प्रॉफिट साइड, पर फिर भी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, हमारा मानना है they will definitely result in that improving in the times to come. एब्सोल्युटली, मैंने बिल्कुल आई एग्री विद यू. एंड अर्जुन, अगर आप थोड़ा सा लाइट इस पे भी डालें कि हाउ दी यू नो women, particularly in rural India, have started taking a bigger started rather playing a bigger role in the past few years. And also, अगर हमें पता है, ये आंकड़े तो बोलते हैं कि $2,700 अपनी जीडीपी पर कैपिटा है, बट अगर आप अर्बन एंड रूरल इंडिया को अलग करें तो क्या नंबर्स दिखते हैं ये? तो अगर एक्चुअली मैं दोनों क्वेश्चन लेना चाहूंगा सुरेन जी. पहली बात महिला की.
इन रूरल इंडिया। और ये बहुत आश्चर्यजनक है क्योंकि हमने ये आंकड़े, वी हैव नॉट सीन दिस प्ले आउट इन अर्बन इंडिया, बट इट हैज प्लेड हम्म आउट इन रूरल इंडिया। अर्बन इंडिया में 2018 से 2024 तक we हम्म have seen in urban India, rural men, rural women, uh, roughly have been roughly 2 odd crore people in each segment have entered the workforce. पर अगर हम रूरल इंडिया की बात करें, लगभग 8 करोड़ महिला हैव एंटर्ड द रूरल वर्कफोर्स, और उनका जो पार्टिसिपेशन रेट है काफी हद तक बदल चुका है। हमने हम्म ये रूरल मेन में इतना नहीं देखा है, रूरल वुमेन में देखा है। तो हम्म उसका नतीजा क्या है? जो ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड है, जहां दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दोस ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड जो 2018 में 20% था, 20% अभी 2024 में दुगना से बढ़ के लगभग 40% पे आ तक पहुंचा है। सो व्हेन यू सी ड्यूअल इनकम हाउस होल्ड डबल फ्रॉम क्लोजर टू 20 to 40%, जो कंजम्पशन पैटर्न्स दिखते हैं वो काफी हद तक अलग होते हैं। We see premiumization, we see a lot more discretionary products enter the households, और हमारा मानना है this is one important पहलू है that will herald the times to come, जहां जो consumption patterns है वो बदलेंगे। हम्म दूसरा प्रश्न से लेने से पहले मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा, वो है $2,000 पर कैपिटा इनकम। ये हम्म एक ग्लोबल नंबर है, ये एक हिस्टोरिकल नंबर है, और हमने देखा है जैसे कई देशों में ऑन दे वे टुवर्ड्स डेवलपिंग, व्हेन दे क्रॉस द $2,000 पर कैपिटा जीडीपी मार्क, हमने कंजम्पशन बढ़ते हुए देखा है। अगर हम हम्म देखें इंडिया में, आपने सही आंकड़े दी इन टर्म्स ऑफ आर करंट जीडीपी पर कैपिटा, पर अगर हम उसको दो हाफ या दो टुकड़े में बांटेंगे, देयर इज अर्बन एंड रूरल। अभी के पॉपुलेशन में देखें, ओवरऑल वी आर 145 करोड़ पीपल, लगभग 90 करोड़ 92 करोड़ आर इन रूरल, लगभग 53 करोड़ आर इन अर्बन। तो अभी के आंकड़े देखें, अर्बन इंडिया हैज क्रॉस्ड $4,200 पर कैपिटा जीडीपी। पर जो कंजम्पशन टेक ऑफ पॉइंट इंडिया का हुआ, कब हुआ था? हम्म 2011-12 में, व्हेन अर्बन इंडिया क्रॉस्ड $2,000 पर कैपिटा मार्क। तो सन हम्म 2011 में हम्म इंडिया क्रॉस द $2,000, अर्बन इंडिया क्रॉस $2,000 पर कैपिटा मार्क। और हम्म उसके बाद जो हमें ग्रोथ देखने को पाए हैं, लार्जली हैज बीन ऑन द अर्बन साइड। तब रूरल का पर कैपिटा जीडीपी लगभग $850 ही था पर कैपिटा। अभी जो हमें डेटा पॉइंट्स देखने को मिली है, कैलेंडर ईयर 2024 में, साल 2024 में, वी हैव सीन रूरल इंडिया आल्सो क्रॉस द $2,000 पर कैपिटा मार्क। ओह वाओ ओके एंड द इंटरेस्टिंग बिट है सुरेन जी, कि हम्म जब इंडिया, अर्बन इंडिया क्रॉस द $2,000 पर कैपिटा मार्क, कितना पॉपुलेशन होगा, कितनी आबादी होगी? अभी लगभग 52 करोड़ लोग हैं, तब कितना होगा सर? एब्सोल्युटली आई थिंक जो हमारा वैसे तो प्रोडक्टिविटी रेट तो थोड़ा कम आया हुआ है बट आई वुड स्टिल अज्यूम दैट वी शुड बी एटलीस्ट अबाउट तो 10% तब 5% ऑफ तब इंडिया तब अर्बन इंडिया वाज रफली 37-38 करोड़ पीपल। तो जो हम्म ग्रोथ हमने पाई है सिंस 2011 ऑनवर्ड्स हैज लार्जली बीन ऑन द बेस ऑफ दीज 38 करोड़ पीपल, जो बढ़ के 52-53 करोड़ पीपल पे अर्बन इंडिया आके रुका है। पर रूरल इंडिया की बात करें, रूरल इंडिया इज जस्ट एट द टेक ऑफ पॉइंट, बट आप साइज देखो लोगों की, वी आर टू टॉकिंग थर्ड ऑफ द $2,000 फॉर अ साइज ऑफ ओवर 92 हम्म करोड़ पीपल। बहुत हम्म बड़ा है इन टर्म्स ऑफ एन ओवरऑल कोहॉर्ट ऑफ पीपल। और जो हम्म डेकेडल अपॉर्चुनिटी छूटेगा ना सर, सुरेन जी, दिस विल बी अ मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटी। जैसे हम एब्सोल्युटली देख रहे हैं इन अर्बन इंडिया, वी कंटिन्यू टू बी पॉजिटिव ऑन ओवरऑल कंजम्पशन, and we are seeing that continuously grow even in urban India. We will see that kind of growth come in the decades to come for rural India. श्योर एनी डेटा ऑल्सो अर्जुन टॉप ऑफ द माइंड अगर आपके ध्यान में आता है कि what is the the productivity rate in terms of the add-on and the number of people in the rural area because आपने जो बात बताई $2,000 की जी भी क्रॉस कर आई थिंक दिस इज अ very big number. This is a very big achievement because consumption
बूस्ट यहाँ से निकलती है। एंड एनीवे 65% ऑफ आवर इकोनॉमी इज कंजम्पशन ड्रिवन, करेक्ट? सो जी आप सोच सकते हैं कितना कंजम्पशन is estimated to come in, with the compounding effect of the growth also in the rural population जी getting added, in that आंकड़े जो आपने बताए, 60% into rural and 40% into non-rural activity from the rural India, कुछ इसमें। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, तो अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, आप सही हो। एंड यूजुअली अगर हम इंडिया के आंकड़े देखें, हाँ। decades ago India was almost, as you mentioned, consumption services is the larger part of the हम्म। economy at the point in time. Services is the largest component. अगर हम रूरल जीडीपी की बात करें, फ्यू डेकेड्स बैक ये लगभग 30% था। 30% ऑफ आवर जीडीपी केम फ्रॉम एग्रीकल्चर। अगर हम लेटेस्ट आंकड़े देखें, 17% है, ओनली 17% कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। और हमारा मानना है कि एग्रीकल्चर विल इंक्रीमेंटली कम डाउन। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनपुट नीचे आएगा, मैं ये बोल रहा हूँ कि पीपल विल बी इंक्रीमेंटली एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज इन रूरल इंडिया। द बेस विल इंक्रीज। एब्सोल्युटली सर। एंड जो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है व्हेन यू आर इन कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज इन रूरल इंडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, दैट विल बूस्ट रूरल इनकम्स अ लॉट। हम्म। चलो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। इंक्रीमेंटली ज्यादातर बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स कहाँ आ रहे हैं? रूरल इंडिया में आ रहे हैं। हम्म। क्यों आ रहे हैं? एक तो सबसे ज्यादा लैंड वहां अवेलेबल है, दूसरा लोग वहां अवेलेबल है, तीसरा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है बिकॉज दे हम्म। वांट टू डेवलप रूरल इंडिया। हम्म। और जब आप ये तीनों चीज करते हो, एसेंशली जब वहां फैक्ट्रियां लगती है, वी सी वाटर अवेलेबिलिटी इंक्रीज, रोड्स गेट बेटर, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी इंक्रीजेस। तो एसेंशली जो इनकम होता है, इट इज नॉट सीजनल एनीमोर इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इट गेट्स अ लॉट मोर स्टेबलाइज्ड। और जो स्पेंडिंग पैटर्न रहता है इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वो काफी हद तक बढ़ता है। तो as manufacturing continues to grow, India is considered amongst the top 5 manufacturing countries in the world. हमारा मानना है over the next decade we should be possibly in the top 3, हम्म। and the enabler for it has to be rural India, हैज टू क्योंकि बी। वहाँ लोग हैं, skill sets बढ़ेंगे, and we will see that growth play out in rural India. एब्सोल्युटली। इनफैक्ट ये मेरा नेक्स्ट सवाल था आपसे कि हाउ हैव यू सीन दी, ऑफ कोर्स इनकम के बारे में आपने बताया कि $2,000 जीडीपी पर कैपिटा फॉर द रूरल इंडिया हैज कम अप। हाउ इज देयर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग ग्रोथ यू हैव सीन? एक तो मेरा सवाल ये है, दूसरा आपसे ये है कि ये जो एग्री टू जीडीपी रेशियो हम देखते हैं 17-18% का, जी इज इट अ सेटिस्फैक्टरी नंबर? चलो मैं दोनों चीज लेता हूँ। पहली चीज की एक्सपेंडिचर की, आपने सही कहा, वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द इनकम साइड, वुमेन पार्टिसिपेशन रेट दैट आल्सो इंक्रीजेस इनकम। तो खर्चा कैसे कर रहे हैं? हम्म। एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड सेटिस्फाइंग टू सी सर। सुरेन जी, इन द ईयर 2000 फूड एक्सपेंडिचर वाज एज हाई एज 60%। नॉन फूड एक्सपेंडिचर जो डिस्क्रिशनरी एक्सपेंडिचर रहता है, वो खाली 40% थी। अभी नंबर एकदम पलट चुका है। वी आर सीइंग अ कंप्लीट फ्लिप ऑफ नंबर्स। द लार्जर proportion now is discretionary, closer to 55%. Food expenditure is now down to 45%. We expect this difference to continue to increase in the times to come. हम्म। और ये समझना चाहिए कि अच्छा, आप बोल रहे हो कि 55% वो एक्सपेंडिचर जो है उनका, वो नॉन फूड में जा रहा है, पर किस में जा रहा है? द लार्जेस्ट सेगमेंट इन नॉन फूड एक्सपेंडिचर इज कन्वेंस, जो ऑटोमोटिव सेक्टर में है। हम्म। आप कहीं भी जाओ, वी सी रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ टू व्हीलर्स। वी आर सीइंग इवन मोटर व्हीकल्स प्रोलिफरेट अक्रॉस विलेजेस। हमारा मानना है दिस ऑटो एक्सपेंडिचर इज ओनली गोइंग टू ग्रो। जीएसटी कट्स एक नियर टर्म ट्रिगर है विच विल बूस्ट कंजम्पशन ऑन ऑटोमोटिव्स। तो ये एक चीज हुई। दूसरा, वन वेरी अदर इंपॉर्टेंट एक्सपेंडिचर, वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे। हम्म। सन 2000 में खाली 2%। अगर उनका एक्सपेंडिचर 100 रुपया होता अक्रॉस रूरल इंडिया, 2% was spent on, और 2.6% was spent on consumer durables। अगर हम अभी की बात करें, लगभग 7% तक आप पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल स्पेंडिंग ऑन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स।
क्यों हुआ है? एक तो आमदनी बढ़ी है, वी हैव डिस्कस दोस नंबर्स। दूसरी बात इलेक्ट्रिसिटी, 2018 में वी हैव इलेक्ट्रिफाइड ऑल आवर विलेजेस, और मैं ये मानता हूं कि वी हैव नॉट गिवन 24/7 इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस इंडिया। हम्म फेयर है, लोड शेडिंग भी होती है, बट इफेक्टिवली अगर हम समझे, जो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शायद पहले 3 या 5 घंटे होती थी, राइट नाउ लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया आर सीइंग एटलीस्ट 12 to 18 hours ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ डे। हम्म तो अगर आपके पास इतना इलेक्ट्रिसिटी हो, आप लाइट फैन तो रखोगे ही, आप किचन अप्लायंसेस भी लगाओगे, आप दूसरे टीवी वगैरह ड्यूरेबल्स भी खरीदोगे। तो नेट नेट ड्यूरेबल्स वी बिलीव इज अ स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड। हमारा मानना है कि दिस विल ओनली इंक्रीज एज अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंक्रीजेस। जैसे लोगों की आमदनी बढ़ती है, वी विल सी मोर एंड मोर ड्यूरेबल्स इन द टाइम्स टू कम। स्पेंडिंग ऑन होम प्रोडक्ट्स, स्पेंडिंग ऑन बिल्डिंग मटेरियल्स, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स हैं। अगर हम एब्सोल्युटली आंकड़े देखें, सुरेंद्र जी, स्पेंडिंग ऑन पर्सनल कंजम्पशन प्रोडक्ट जैसे पान, तंबाकू, अल्कोहल, इंटॉक्सिकेंट्स, मिसलेनियस गुड्स, एंटरटेनमेंट बढ़ता ही जा रहा है, बिकॉज अभी लोगों की आमदनी थोड़ी बड़ी है, एंड नाउ दे कैन स्पेंड ऑन अ लॉट मोर आइटम जो पहले नहीं खर्चा कर सकते थे। तो दिस इज वन ट्रेंड जो बढ़ के आ रहा है, एंड आई थिंक दिस गिव्स अ सेंस टू आवर व्यूअर्स, टू योर व्यूअर्स सर, कि what segments we are looking at participating within the portfolio. एब्सोल्युटली। एंड अर्जुन, मैं इसके ये सब चीजों के पीछे मैं श्रेय देना चाहूंगा टू आवर इंटरनेट रेवोल्यूशन इन आवर कंट्री ऑल्सो। जी बिकॉज उससे क्या हुआ है कि सोशल मीडिया जब से आया है एंड इंटरनेट हमारी कंट्री में है, ऑब्वियसली व्हेन पीपल लुक एट इट एंड दे सी ओके व्हाट लाइव्स अदर्स आर लीडिंग, चाहे हिंदुस्तान के ही अर्बन में हो या वेस्टर्न वर्ल्ड में हो या ईस्टर्न वर्ल्ड में हो, सो देयर इज अ सेंस ऑफ एस्पिरेशनल रिक्वायरमेंट विच कम्स इन, कि मेहनत करेंगे, काम करेंगे, तो और इनकम आएगा, और इनकम आएगा तो और स्पेंडिंग कर पाएंगे फॉर आर रिक्वायरमेंट्स, विच यू जस्ट मेंशन। एंड ऑफ कोर्स प्राइवेट सेक्टर ने और सरकार ने ऐसी पॉलिसीज लाए which kind of propelled it, gave a lot of tailwind to this entire agenda. चलिए, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। मुझे एक बात बताइए कि what is some of the reasons or one of the reasons which could spoil this great rural story going ahead in India? जी, वाइल एग्रीकल्चर में, क्योंकि इफ वी सी नियर टर्म, हम मॉनसून्स की बात करते हैं, क्योंकि हम इतना जिक्र कर रहे थे, वी हैव डिस्कस्ड व्हाई रूरल इज नॉट एग्रीकल्चर, बट दैट डजंट मीन रूरल इज हैज जीरो एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है रूरल इंडिया का। एंड इफ वी डू सी अ मॉनसून ड्रामेटिक फॉल इन इराटिक मॉनसून्स, ये एक रिस्क फैक्टर जरूर है। Hmm. हम नजरअंदाज करेंगे कि कैसे मॉनसून के आंकड़े आ रहे हैं, एंड वी विल डायनेमिकली एलोकेट कैपिटल अक्रॉस सेक्टर्स, क्योंकि ये एक जो थीम है, एक बड़ा ब्रॉड थीम है। इट इज नॉट जस्ट एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन भी है, मैन्युफैक्चरिंग भी है, Hmm. सर्विसेज Hmm. भी है, Hmm. फाइनेंशियल सर्विसेज भी है, तो इट्स प्रीटी लार्ज। बट वी विल लुक एट डायनेमिकली allocating capital and moving towards defensive stocks in that period. मैं दूसरी बात कहूंगा, एंड दिस इज अ की रिस्क फैक्टर, कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ना डेवलप हुए इन रूरल इंडिया, स्पेशली इन स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर हम क्रॉप आउटपुट की बात करें, वी आर सीइंग इम्प्रूवमेंट्स, देयर इज फार्मर टू फोक मॉडल। हम देख रहे हैं हाउ प्राइवेट सेक्टर, हाँ प्रॉफिट बना रहे हैं, बट दे आर कमिंग अप विद इनोवेटिव मीन्स कि सबके Hmm. लिए विन विन हो। Hmm. इफ ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो वो रुक जाए, दैट ऑब्वियसली विल टेक अवे जो ग्रोथ हम देख रहे हैं, विल पोटेंशियली नॉट बी एज स्ट्रॉन्ग। एक दूसरी चीज, अगर हम समझे रूरल इंडिया में एक प्रॉब्लम है, वो है लैंड होल्डिंग की। Hmm. लैंड होल्डिंग इन रूरल इंडिया हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली। Hmm. यूजुअली सक्सेशन में लैंड होल्डिंग्स की बात करें, जो पहले 5-10 एकड़ होती थी, ज्यादातर 1-2.5 एकड़ देखने को मिलती है। तो जो फार्म मैकेनाइजेशन है, जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात करते हैं Hmm. एग्रीकल्चर साइड में, वी Hmm. सी दैट कैन गेट इम्पैक्टेड एंड लीड टू लोअर फार्म मैकेनाइजेशन, एंड जो यील्ड ग्रोथ हम चाहते हैं, दैट मे नॉट कम थ्रू टू द लेवल एक्सपेक्टेड।
चौथी बात इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी स्टेबिलिटी, क्योंकि हम्म काफी पॉलिसीज निकलती है रूरल इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। जैसे वो पॉलिसी बदलती रहती है, पोटेंशियली दैट कुड बी एन इशू, बट aside from that, we do believe ये एक strong structural decade long story है, near term tailwinds है. If we look at it, Surenji, this year we have had amongst the best monsoons for India. We are over 107, 108% long period average. अगर हम टेम्पोरल या स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें, ऑलमोस्ट 80% ऑफ इंडिया हैज रिसीव्ड नॉर्मल और एक्सेस मानसून. लार्ज एक्सेस मानसून हैज बीन, यस, 10% ऑफ इंडिया, वहां फसल खराब हुई है. पर ज्यादातर अगर हम देखें, मोस्ट ऑफ इंडिया हैज हैड गुड मानसून्स. एंड व्हेन यू हैव गुड मानसून्स, यू एक्चुअली सी कि देयर इज मॉइस्चर इन द सॉइल, आपका वाटर टेबल बढ़ता है. And I think most importantly, reservoir levels which hold that water for the next season, which is the Rabi season, it actually helps a lot. अगर हम आंकड़े देखें, recent आंकड़े हैं कि on an all India basis, we are almost 17-18% higher than long period average. South की बात करें, we are almost 25% higher than long period average. तो जो रबी सीजन आगे आएगा, potentially we could see a good season. हाँ, delay से start हुआ है, but over the winter crop winter season we are seeing tailwinds. And अगर हम data देखें in terms of recent data, tractor sales बढ़ रही है, two wheeler sales बढ़ रही है, rural employment growth strong है, real rural wages, sir, Surenji, is actually at close to being a 8-year high. और अगर हम देखें in terms of, which I think is pretty interesting, is that MREGA demand is actually showing a degrowth. कि लोगों को कहीं और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं एट मोर रिम्यूनरेटिव प्राइसिंग. तो नेट नेट वी बिलीव दिस इज पॉजिटिव ऑन द रूरल इंडिया इन टर्म्स ऑफ नियर टर्म टेलविंड्स. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. नहीं नहीं, बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से बताया. एंड दीज आर आई थिंक द रीजंस, डेकेटल ग्रोथ, बिल्कुल जैसे आपने ठीक से बताया. अर्जुन जी, एक बात बताइए कि थ्रू दिस इन कॉन्वर्सेशन टुडे, आप जितने भी व्यूअर्स आपको सुन रहे हैं, आप उनको कोटक रूरल अपॉर्चुनिटीज फंड के एनएफओ के बारे में क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं एक्चुअली कुन्नी पंक्तियों से वेरी फ्यू सेंटेंसेस आई वुड लाइक टू यूज. वन, रूरल इंडिया खाली एग्रीकल्चर नहीं है. रूरल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग भी है, कंस्ट्रक्शन भी है, सर्विसेज भी है, फाइनेंशियल सर्विसेज भी है. दूसरी बात, ये फंड एक मार्केट एग्नोस्टिक फंड है. जैसे फ्लेक्सी कैप काम करता है, हम लार्ज कैप स्टॉक्स भी लेंगे, मिड कैप स्टॉक्स भी लेंगे, स्मॉल कैप स्टॉक्स भी लेंगे. वी विल डू बॉटम अप स्टॉक सिलेक्शन. तीसरी बात, हमें ये जो दिख रहा है, ये एक मल्टी डेकेडल अपॉर्चुनिटी है. हाँ, नियर टर्म ड्राइवर्स है, फिर भी मैं आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि जब आप आते हो थीमेटिक में, गिव इट अ टाइम पीरियड ऑफ 5 years. दिस इज अ प्योर इक्विटी प्रोडक्ट. रिस्कोमीटर में इट्स अ वेरी हाई रिस्क प्रोडक्ट, क्योंकि ये एक प्योर इक्विटी प्रोडक्ट है. आप टाइम दीजिए कंपाउंडिंग के लिए. गिव इट अ 5 year टाइम पीरियड. इससे आपको क्या बेनिफिट होती है? जो शॉर्ट टर्म वॉलिटिलिटी होगी, you will be able to ride out due to agri cycles, due to global macroeconomic events. एक लास्ट चीज कहना चाहूंगा कि हम किस में निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि ये ब्रॉड सेगमेंट है. हम अभी अपने इन्वेस्टेबल यूनिवर्स में ग्लोबल आईटी जो इंडिया में लिस्टेड कंपनीज है, ज्यादातर सर्विसेज में है, और वो अर्बन फोकस्ड है, दुनिया में अपना प्रोडक्ट सर्विसेज बेचते हैं, हम वो नहीं खरीदेंगे. हम एक्सपोर्ट, फार्मा, सीडीएमओ नहीं खरीदेंगे. हम सिनेमाज, क्यूएसआर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स नहीं खरीदेंगे जब तक वो रूरल इंडिया में नहीं आएंगे. हम वही कंपनियों में निवेश करेंगे जो रूरल या अलाइड बिजनेसेस में है, उसको समझ के निवेश करेंगे. और हमारा मानना है, ओवर डेकेड्स वी शुड सी वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ. हिस्टोरिकली वी हैव सीन स्ट्रॉन्गर ग्रोथ इन रूरल इंडिया देन अर्बन इंडिया. और जो $2,000 पर कैपिटा मार्क क्रॉस हुआ है, potentially we should see strong growth opportunities drive out of it. Absolutely. Very well summed it up. Very well summed it up, Arjun. So, well, for our viewers, this is Mr. Arjun Khanna from Kotak Mutual Fund, Fund Manager Equity, talking about their new fund offer
Kotak Rural Opportunities Fund, which opened on 6th of November and closing on the 20th of November. Arjun, thank you very much for taking us and our viewers, बहुत ही detail में about that. Rural is not about agriculture. Rural, it is about multiple other opportunities and sectors, and biggest thing, consumption boom, right? बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल के हमको ये सारा का सारा अपडेट दिया आज. बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन. Thank you, Surenji. थैंक यू. और मैं अपने सब्सक्राइबर्स को याद दिलाना चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब टू एडवाइजर खोज यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग अपडेट्स. थैंक यू अर्जुन. Thank you. Namaste.